Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for computer science for grade pre-9th. And in this lecture, we are going to begin the unit number 3. Dear students, in class, we have done 2 units from our syllabus, and in this lecture, we will move towards our unit number 3, which is networks. And today our first lecture of unit number 3 is going to be delivered to you. So let's begin. Dear students, please bring your computer book, open it and write date and day properly on the top of the page number 54, where the unit of computer networks begins. Listen to teacher attentively and mark all the important points said by teacher on your book. Your lead pencil should be in your hand, your eraser and your sharpener should be with you. Your pencil should be neatly sharpened so that it can help you marking the points neatly and efficiently. So please open your page number 54, and here the topic of computer network begins. Dear students, in our daily life, we use computers to browse the internet, send, receive emails, play online games, watch online download music, take online courses, and read daily newspapers, etc. Nowadays, you are continuously using your internet for the purpose of your online studies through YouTube. All such activities require a computer connection with some other computers to make a computer network. They can be linked through a wire or wireless. Some networks are connected with each other with the help of a wire, or some are wireless. For example, you can take an example of your mobile phone. Is it connected wired through with anything? Is your mobile phone connected with wire? Suppose you have an internet device in your home which is plugged uh, at somewhere in your house, and you are using Wi-Fi of this network on your mobile. Does it require any wire? No, it doesn't. When you use Wi-Fi for your mobile phone, it doesn't require any wire. So this type of connection is called wireless connection. A communication medium connecting multiple computers is also called a communication channel. कोई भी मीडियम, कोई भी ऐसा ज़रिया जो आपके जिसकी वजह से जिसके साथ आपका पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है, वो उसका मीडियम या चैनल कहलाता है. Here a diagram is drawn on your page number 54. This diagram shows an overview of a computer network. इसमें एक राउटर है, एक मॉडेम लगी हुई है और इर्द गिर्द बहुत सारे डिवाइसेस हैं. मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है और बहुत सारे अदर कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं वो इस मॉडेम के साथ. अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि कुछ डिवाइसेस, यहाँ पे एक प्रिंटर है और 2 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि वायर के साथ कनेक्टेड है उस मॉडेम के साथ. मॉडेम मैं किसे कह रही हूँ? यहाँ पे जो एक राउटर है, एक ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन को आपकी एंड यूज़र डिवाइसेस के साथ जोड़ता है, ये मॉडेम है. 3 डिवाइसेस ऐसी हैं जो मॉडेम के साथ वायर के ज़रिए कनेक्टेड हैं. एक प्रिंटर है और 2 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं. और 3 डिवाइसेस आप ऐसी देखेंगे जिनके दरमियान में कोई भी वायर नहीं है, जिनमें एक मोबाइल फ़ोन है, एक लैपटॉप है और एक और एलसीडी है. ये 3 डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि जिनके साथ मॉडेम के साथ कनेक्ट करने के लिए जिनमें कोई वायर नहीं है. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कुछ डिवाइस जो कि वायर्ड भी कनेक्ट हो जाता है और वायरलेस भी कनेक्ट हो जाता है. अब यहाँ पे 3 डिवाइसेस वायर्ड हैं और 3 वायरलेस हैं. सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड द डेफिनेशन इज़ ऑल्सो given on your page number 54. A computer network is a group of computer systems and other computing hardware devices linked together through communication channel. A network facilitates communication and resource sharing among the connected devices as shown in figure 3.1. And 3.1 figure मैं आपको already explain कर चुकी हूँ. Networks are connected together to make a large network which is
called network of networks. The internet is considered as the most well-known example of network of networks. Dear students, in this paragraph, too many things are summarized in only this paragraph of 4 to 5 lines. Too many things are summarized where it is described that what is a network. A network is a network is a combination of devices linked with each other. Those devices can be some computers, some wired devices, some wireless devices. Those devices can be some resources. For example, आप यहाँ पे एक term use हुई है resource sharing. What does the resource sharing mean? इसका मतलब ये है कि स्मॉल नेटवर्क्स में बहुत सारी डिवाइसेस भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं. फॉर एग्जांपल, आपका एक नेटवर्क है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड हैं. वहाँ पे एक प्रिंटर है. सपोज कोई ऑफिस है जहाँ पे 5 कंप्यूटर सिस्टम्स पड़े हुए हैं, 4-5 लोगों के मोबाइल फ़ोन्स हैं और कुछ प्रिंटिंग डिवाइसेस पड़ी हुई हैं. एक स्कैनर है, एक प्रिंटर है. अब जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर एक ऑफिस में अगर 5 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं तो उन पाँचों के लिए अलग-अलग प्रिंटिंग डिवाइस हो. ऑफ कोर्स हर किसी को प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है. तो वो लोग क्या करते हैं, they make a network within that office and connect every device, every computer and the printer or the scanner or any device that is used to be that is required to be shared. वो उस डिवाइसेस उन सारी डिवाइसेस को उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं. उससे क्या होता है कि वो पांचों जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो उस एक ही प्रिंटर को शेयर कर रहे होंगे. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग कि जब कोई एक डिवाइस हमारे पास है और बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उस एक डिवाइस को यूज़ करना है तो वो क्या करते हैं, उसको नेटवर्क में ले आते हैं जिसकी वजह से वो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग. Okay, here our term is said communication channel. I already have explained you communication channel. It can be wired or it can be wireless. Among the network connected together through a large network. Okay, छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं. सपोज़ आपके एक नेटवर्क आपके स्कूल की आपकी ब्रांच का है और सपोज़ IIOI स्कूल की एक और ब्रांच है, उसके अंदर भी एक कंप्यूटर नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ है. सपोज़ एक और ब्रांच है उन्होंने भी. और अगर हम इन छोटे छोटे 3-4 नेटवर्क्स को मिला दें और इन नेटवर्क्स का एक नेटवर्क बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. और इंटरनेट इसकी एग्जांपल किस तरह से है, इंटरनेट इसकी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि दुनिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो सब के सब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं. और जितने भी नेटवर्क्स हैं और जितने भी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स हैं वो सारे इन द एंड इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं. तो इस तरह से इंटरनेट एक दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. नाउ कम टू पेज नंबर 55. Need of a computer network. Why do we need a computer network? Dear students, in this figure you can clearly see कि एक वायरलेस राउटर है जिसके वो मॉडेम भी कहा गया है, उसके साथ प्रिंटर कनेक्टेड है, उसके साथ वेब कैम है, उसके साथ NAS है, उसके साथ PC है, कोई डिजिटल कैमरा है, स्मार्टफोन्स हैं, वायरलेस मीडिया प्लेयर है, इंटरटेनमेंट सिस्टम. कोई भी ये ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई म्यूज़िक सिस्टम होगा. और कोई लैपटॉप है, कोई IP कैमरा है, कोई मीडिया PC है. तो ये सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं. सपोज़ यहाँ पे 6-7 कंप्यूटर सिस्टम्स और कनेक्ट हो जाते हैं तो वो सारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो इस वेब कैम को भी यूज़ करेंगे, वो इस प्रिंटर को भी यूज़ करेंगे, वो इस IP कैमरा को भी यूज़ करेंगे. और आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. This figure is an example for resource sharing. Okay, need of computer networks. Why do we need a computer network? A computer network is established for the purpose of sharing resources. And examples of resources sharing are given below. First of all, file sharing. Okay, एक जो network है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल ली ऑफ़िस की. तो होता क्या है, उस ऑफ़िस में सब लोगों को सेम टाइप की कुछ फ़ाइल्स की ज़रूरत होगी. पहले क्या होता था, जब मैनुअल सिस्टम्स थे वो एक फ़ाइल होती थी, वो उसकी कॉपीज़ होती थी सबके पास जो कि मैनुअल होती थी. अब सपोज़ किसी एक बंदे ने उस फाइल में कोई चेंजेस की हैं और वो दूसरे ने भी उसको कॉपी कर लिया लेकिन तीसरा उसको कॉपी नहीं कर सका, उस तक वो चेंज नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, सिस्टम का वो सारा रिकॉर्ड
एक तरह से एक इन दी एंड एक ना एक दिन वो पता ही चलेगा कि वो उस बंदे के पास तो ये था ही नहीं और उनका वो सारा काम गड़बड़ हो गया। नेटवर्क्स के साथ क्या होता है, जब हमारी सारी फाइल्स, हमारा सारा डेटा सॉफ्ट पे हमने उसको कर दिया है इम्प्लीमेंट, तो इसमें हमें फ़ाइल शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब 5 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, हम ये नहीं कर सकते कि जितनी भी फाइल्स एक कंप्यूटर सिस्टम में हैं वो सारी की सारी दूसरे में भी हों, तीसरे में भी हों, चौथे में भी हों। अब सपोज़ एक बंदे ने उसमें काम किया है, उसमें चेंजेस की हैं, अब वो चेंजेस तो उसके कंप्यूटर सिस्टम में हैं, बाकी जो 3-4 लोग हैं उसके पास तो वो न्यू चेंजेस, न्यू अपडेट्स गई ही नहीं। इसके लिए हम नेटवर्क यूज़ करते हैं। एक जो कंप्यूटर सिस्टम, जो मेन कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके पास सारी फाइल्स होंगी, सारे का सारा सिस्टम का रिकॉर्ड होगा। एक और कंप्यूटर सिस्टम पे बैठने वाला एक बंदा जिसने उस पर काम करना है, वो उस पर जब काम करेगा तो एक्चुअली वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में पड़ी हुई किसी फाइल पे काम नहीं कर रहा, बल्कि वो नेटवर्क पे पड़ी हुई एक फ़ाइल पे काम कर रहा है। और जब वो नेटवर्क पे पड़ी हुई किसी फ़ाइल पे काम करेगा तो वो वाली फ़ाइल में जितनी भी अपडेट्स होंगी वो सब तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो उसने फ़ाइल चेंज ही वो की है जो नेटवर्क पे है, और वो नेटवर्क वाली फ़ाइल ही सब लोग एक्सेस कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। यहाँ पेज नंबर 55 पे एक पिक्चर भी है जिसमें एक फ़ाइल फ़ोल्डर बनाया हुआ है और 2 कंप्यूटर सिस्टम्स अलग-अलग बनाए हुए हैं। अब ये जो दोनों कंप्यूटर सिस्टम वाले जो लोग हैं, ये उस फ़ाइल में ही जाके चेंजेस करेंगे और दोनों ही उन अपडेट फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकेंगे, क्योंकि फ़ाइल अपडेट हुई ही वो है जो कि ऑलरेडी नेटवर्क पे थी, जिसको सब लोगों ने एक्सेस करना है। नेटवर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स अ नेटवर्क user to share files. For example, if you need date sheet of your board examination, you can get the file through the internet without visiting BICE, the Board of Intermediate and Secondary Education office. Similarly, BICE requires your picture and your biodata for admission form. They can get all these files over a network. So the file sharing is helpful to complete a tasks systematically, just shown as in the figure 3.2. Example is here, if all your school teachers want to prepare a combined result using computers. Dear students, this is exactly what happens in our school in IIUS Sahiwal's campus, that एक ही रिज़ल्ट शीट होती है जिसपे हम सब लोग अलग-अलग अपने सिस्टम पे बैठे हुए हम उस रिज़ल्ट शीट के ऊपर काम करते हैं, और वो जो रिज़ल्ट शीट है वो एक्चुअली सर्वर कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, और जितनी भी चेंजेस, जितनी भी अपडेट्स हैं वो एक्चुअली सर्वर कंप्यूटर पे पड़ी हुई उस फाइल पे हो रही हैं। ये नहीं होता कि एक टीचर अलहदा से अपना रिजल्ट रेडी करेगी, दूसरी टीचर फिर उस फाइल को लेके उस पर अलहदा से करेगी। नो, एट वंस सब लोग उस पर अपना अपना काम करते हैं, और वो एट वंस वो जो फाइल होती है वो सबके लिए एक्सेसिबल होती है, और सब लोग उस पर जो अपडेटेड फाइल है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो था एग्जाम्पल फॉर फाइल शेयरिंग। उसके बाद सेकेंड पर्पज़ आ जाता है हार्डवेयर शेयरिंग। सेम आई ऑलरेडी गिव यू एग्जांपल ऑफ प्रिंटर। यहाँ पे पेज 55 पे फिगर 3.3 में रिसोर्स शेयरिंग की एग्जांपल दी हुई है कि यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM ड्राइवर, drives, hard disk driver, etc. For example, in an office, usually there are less number of printer and scanner. Dear students, I already have explained you this whole thing. Now you need to just read it out again and find the ambiguities if you have. Now please come to the next example, which is application sharing. Application sharing क्या होती है? Applications किसे कहते हैं? Do anyone of you know what is an application? वो एप्लीकेशन दरख्वास्त नहीं जो आप किसी को किसी काम के लिए कोई अर्जी लिखते हैं, वो वाली एप्लीकेशन नहीं। ये एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एज़ यू ऑल ऑलरेडी नो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को। फॉर एग्जांपल, ये आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी सिस्टम्स होते हैं आप उनको क्या कहते हैं? ऐप्स। ये एक ऐप है, एक मोबाइल ऐप है। वो ऐप एक्चुअली होती क्या है? वो ऐप, APP ऐप, वो एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म है। सो यू अंडरस्टूड व्हाट एप्लीकेशन इज़। तो समटाइम्स हम नेटवर्क के थ्रू एप्लीकेशंस भी शेयर कर रहे होते हैं कि किसी एक सिस्टम में कोई ऐप इंस्टॉल्ड है जो मेन सिस्टम है, और बाकी सारे जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं वो उसी ऐप को शेयर कर रहे होते हैं। एप्लीकेशंस कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। डियर स्टूडेंट्स, दिस example is given to you on page number 56 of your book. On the top of this page, the paragraph starts that application sharing. Applications can be shared over the network. It means that more than one users may use the same application. For example, in public bank, cashier, manager,
ATM users use same application over the network. Bank balance updated at one point is updated for all the branches immediately. एक ही टाइम पे सब लोगों के लिए वहाँ पे डेटा जो है वो अपडेट हो रहा होता है. This is the best example for application sharing. Next need is for sharing a single internet connection. लोगों ने एक ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट होने के लिए नेटवर्क में उनको आना पड़ता है. यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन with more than one users as shown in figure 3.1. Come back to page number 54 where figure 3.1 is drawn. यहाँ पे आपने देखा था कि एक ही इंटरनेट के साथ सब लोग कनेक्टेड हैं, तो ये भी एक टाइप का छोटा सा नेटवर्क बन जाता है. नेक्स्ट इज यूज़र कम्युनिकेशन. डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एवर joined Zoom video or any Google Meet or any Google Classroom? That's the example of user communication. Networks allow users to communicate using email, news groups, and video conferencing, etc. So communication with many people sitting on different locations is possible due to a network. For example, a video conference comprises the technologies for the reception एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिसेप्शन का मतलब है उसको रिसीव करना एंड ट्रांसमिशन का मतलब है उसको भेजना, सेंड करना. सिग्नल्स बाय यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस एज शोन इन फिगर 3.5. यहाँ पे आपको क्या दिखा हुआ है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है. सब लोग किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होके सब लोग आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. नेक्स्ट यूज़ है जी इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स the limit of stored data in a computer. If we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer. For example, एक कंप्यूटर, एक मेन कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर, और बाकी सारे उसके क्लाइंट्स, उसके जो मतलब एक सिस्टम में बाकी सारे सिस्टम्स हैं और एक मेन सिस्टम है. तो उस मेन कंप्यूटर सिस्टम में सपोज़ हम हार्ड ड्राइव जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी की है और बाकी सारे सिस्टम्स में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना सिस्टम तो यूज़ करेंगे ही करेंगे. उसके अलावा अपने डेटा का बैकअप रखने के लिए वो जो मेन कंप्यूटर है वहाँ पे उसमें अपनी उसका एक ऐसा फोल्डर या कोई ऐसी फाइल्स होंगी जो कि एक्सेसिबल होंगी, तो उसमें वो अपना डेटा सेव कर देंगे. तो इससे क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी और स्टोरेज की सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी. If we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer. In this way, we can store and access files stored remotely. Remotely का मतलब दूर कहीं पे किसी और सिस्टम में पड़ा हुआ. In this setup, a computer providing a storage is called file server and the computer accessing the space is called the workstation. होता क्या है कि कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिस पे हम अपनी फाइल्स स्टोर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फाइल सर्वर. और जो कंप्यूटर उस स्पेस को एक्सेस कर रहा होता है, यानी कि वो वाला कंप्यूटर जिसने अपनी फाइल उसको दी है, वो वाला कंप्यूटर कहलाता है वर्क स्टेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती है या आपको MCQs में आ सकती है. प्लीज़ अंडरलाइन दीज लाइन्स फ्रॉम इन दिस सेटअप. यहाँ से वर्क स्टेशन यहाँ तक कि ये 2 लाइन्स को अंडरलाइन कर लें, बिकॉज दिस मे कम टू यू एज MCQ और एज 2 मार्क्स short question. Next is given that we can use services like Dropbox and Google Drive to store our files remotely. Wow, this is the same example I was going to give you. That कभी आपने अपने मोबाइल फ़ोन में आपने गूगल ड्राइव यूज़ की है कभी? उसमें क्या होता है, आप अपने ईमेल अकाउंट पे ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप गूगल के ऊपर अपनी एक छोटी सी ड्राइव बना लेते हो. उससे क्या होता है, आप अपने फ़ोन में या आपकी कोई भी डिवाइस है, सपोज़ आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप चाहते हैं कि ये कभी लॉस ना हो जाए या आप चाहते हैं कि कोई इसमें चेंजेस ना कर दे, तो आप क्या करते हैं, आप उन फाइल्स को या उन फोल्डर्स को या वो जो कुछ भी होता है आप उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हो. वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाता है. अब वो ना तो आपकी कंप्यूटर सिस्टम में है कि वो आपकी स्टोरेज ले रहा है, ना ही उसमें कोई ऐसा खदशा है कि वहाँ पे जाके उनको कोई चेंज कर देगा या उनको कोई स्टील कर देगा या वो आपसे डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि वो तो आपने गूगल ड्राइव पे रख दी हैं.
तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। आप अपने मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स अ न्यू आइडिया फॉर यू, अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव डाउनलोड करें और वहाँ पे जो आपके मोबाइल फ़ोन की जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स या जितनी भी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं आप उस पर अपलोड कर दें। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फ़ोन से अगर वो डिलीट भी हो जाएंगी तो आप कभी भी अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन करके अपनी गूगल ड्राइव ओपन करेंगे और वहाँ से आपको वो सारे के सारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा। वॉज दैट अमेजिंग? ओके, now let's move towards file sharing. Networking of computers help a network user to share files. I already have explained you. Next is hardware sharing. Here is an example of hardware sharing is given. यहाँ पे एक ही प्रिंटर है और 4 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप स्कैनर की भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई एक ही स्कैनर हो उसको सब लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपके स्कूल में कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, वो सारे कैमराज भी आपके कंप्यूटर में, आपके स्कूल में जो जितने भी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स हैं जो मेन सर्वर के तौर पे यूज़ होते हैं उन सब के लिए उनकी कवरेज एक्सेसिबल है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर शेयरिंग। नेक्स्ट, फॉर एप्लीकेशन शेयरिंग आई ऑलरेडी हैव गिवन यू द बेस्ट एग्जाम्पल विच इज़ ऑफ ATM। ATM मशीन की जो एप्लीकेशन है उसमें जितनी भी चेंजेस डेली होती हैं वो सारी के सारी चेंजेस अपडेट होती जाती हैं बैंक के डेटा में। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। कि एक ही इंटरनेट कनेक्शन होता है, एक ही घर में एक ही डिवाइस लगी हुई होती है और सब लोग उसके साथ ही कनेक्टेड होते हैं। यूज़र कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे आपको एक ऑफिस का सीन दिखाया हुआ है जिसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है थ्रू टेक्नोलॉजी। अब मीटिंग्स इसी तरह होती हैं, लोगों को फिज़िकली वहाँ अपीयर होना नहीं पड़ता बल्कि इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की सबसे बेहतरीन मैंने आपको एग्जांपल दे दी है गूगल ड्राइव की। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। हम जो अमूमन नेटवर्किंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं मॉडल वो होते हैं क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस एंड अ क्लाइंट गेट्स द सर्विस। होता क्या है, एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है, बाकी सारे उसके क्लाइंट्स होते हैं। जो जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो सर्वर कंप्यूटर में पड़ी हुई होती हैं और बाकी सारे लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सारे लोग आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते बट वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं अपने सर्वर कंप्यूटर के साथ। और इस नेटवर्क के इस मॉडल को कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। नेटवर्किंग के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, एक पीयर टू पीयर मॉडल, 1-to-1 मॉडल और एक क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो यहाँ पे आपको ये क्लाइंट सर्वर मॉडल की एक एग्जांपल दी हुई है। अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेसेस अ सर्विस प्रोवाइडर बाय द सर्वर। फॉर एग्जांपल टू चेक ईमेल वी कैन यूज़ गूगल ब्राउज़र। ये अगर आप इंटरनेट को एक नेटवर्क समझें तो जब आप गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च आउट करते हैं तो वो आप एक्चुअली कहाँ कर रहे हैं, वो जो डेटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बंदा बैठा हुआ है, आप गूगल पे एक सर्च करते हो एक चीज़ और वो बंदा आपको फ़ौरन उसका जवाब देता है, ऐसा तो नहीं है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, इतना बड़ा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कि दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। या हो सकता है बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन है, किसी में किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन है, किसी में किसी टाइप की, तो वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। जब हम गूगल से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो उसमें से सर्च आउट करता है कि इसका आंसर मुझे कहाँ से मिलेगा, वहाँ से वो सेकेंड्स में उसका आंसर सर्च आउट करता है और आपको दे देता है। तो ये एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें आप क्लाइंट के तौर पे एक्ट कर रहे हो और गूगल वहाँ पे क्या है, गूगल वहाँ पे सर्वर है। आपने गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसने आपको वाली इन्फॉर्मेशन दी है। उसके अलावा जब आप ईमेल सेंड करते हो तो ये तो नहीं है कि डायरेक्ट आपकी ईमेल आपकी कंप्यूटर से डायरेक्ट जो रिसीवर है उसके कंप्यूटर में चली जाती है, ऐसा नहीं है। इसमें दरम्यान में इंटरमीडियरीज होते हैं। जैसे कि अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हो तो गूगल आपकी ईमेल को लेके आपके रिसीवर तक पहुंचाता है। तो वहाँ पे गूगल सर्वर कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर है। दिस टॉपिक इज़ गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 57 ऑफ योर बुक। आपने अब क्या करना है,
पेज नंबर 54 से पेज नंबर 57 तक के सारे जो डेटा है उसको रीड आउट करना है और इसको लर्न करना है। और लर्न करने के लिए आपके पास यहाँ डेफिनेशन है, पेज 55 और 56 पे आपके पास यहाँ पे नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि सारा का सारा लर्न करने से रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास पेज नंबर 57 पे क्लाइंट सर्वर मॉडल की डिटेल गिवन है। आपने इस सारे चीज़ों को लर्न करना है। और अगर आपको ये पढ़ते वक्त किसी बात की समझ ना आए, आप कुछ पूछना चाहें, तो यू कैन पिक योर मोबाइल फ़ोन, यू कैन ओपन योर व्हाट्सएप and send a WhatsApp voice note of your question with your name, your grade and your subject and your lecture number. The immediate response will be given to you. Good luck dear students. This is the end of today's lecture. Allah Hafiz.